हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12। इसमें हम आज करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। यानी देखा जाए तो 12वां चैप्टर जो इतिहास का है उसमें प्रशासनिक प्रणाली और संस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक हम जानने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, कोई भी बोर्ड हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, खास तौर पे जो है यूपीएससी एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए। कहते हैं इसमें बहुत कुछ आपको जानने और समझने को मिलेगा, लेकिन ये सब तब होगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से एक बात मैं साफ कर दूं कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, provisional administration and ecosystem. There is a most important topic here. The administration in the area that were outside the core political area was carried out in the number of ways. It is depend on the degrees of political control which was the exercise over to the areas. The territory expansion and the consolidations of the Sultanate was a process which continually to the throughout the 13th and 14th centuries. Some of the newly is a conquered area were both directly under to control of the Sultanate, and some other areas remain semi-autonomous. Thus, the different control of mechanism were adopted by the Sultan for these areas, and the areas that is closely is affiliated there to the Sultanate. A few officials and appointed by the center as a symbol of imperial presence, but everyday administration remained in the local hands. The interest of the center in this area was mostly economics and collection of the revenue. Revenues is the most important collection on this period time. The prevalence where is a place under to the charges of the governor, who were responsible for the overall administration of the area, and this involved ensuring the collection of the revenue, maintaining law and order, and keeping to the rebellious is the element under control. He was a debtor of the Sultan in this area, and since they officially were frequently transferred and not familiar with the areas, they were generally is depend on the local officially to perform their duties. The collection of the revenue was not possible without the help of the local officials. Thus, the governors and the local power is a block is work in the close association with each other. At the time, the combination of created problem from the Sultan as the governor used to become a powerful with the help of the provided by the local rulers and rise in the rebellions against the Sultan. During the 14th century, there is a prevalence where to the penetration into the Swekas for the administratives is a conventions. The Swekas as were administered by the Sikhodar, and subsequently there is got a transfer into the Sarkar. And during the Afghan period, and Fazudar was another officer along with the Sukedar at their provisional level, and there is a duty are not a clearly and is articulated to, and often to the role of the two seem to be overlapped.
The Siddiqar is assisted the governors in the maintenance of the law and order and provided to the military assistance. He also supervised the functioning of the small administrative unit. The duty of the Fauzdar were similarly to the Sukadar and the Kotwalas were to place under to the Fauzdar. And other important officer at the provisional level were varied. The intelligence officer and reporter, and Sahib a Diwan, who is maintaining the financial account of the provisional income and expenditure. The next here is a ICTA system. What do you mean to hear a ICTA system? And what understand you a ICTA system? There is a most important question here. The ICTA system, the institution of the ICTA has been to force in an earlier Islamic world as a form of the reward for a service to the state. There is the most important here. Iqta system is their Islamic word as a form of reward for a service to the state. In the Caliphate is administration. It was used to pay a civil and military officer. After the establishment of Sultanate, Iqta system was introduced by the sultans, and to begin with their army commander and the noble where is given territories to the administrators and collection to the revenue. The territories has assigned where is called to the Ekta, and there is a holder as a Iktadar or Mukti. That is the most important here. And in sense, this was system of the payment to be officer and maintenance of army by them. And gradually rulers and regulation were laid down to the organized the whole system. And through the year it's become the main instrument of administrating the Sultanate. The further Sultan could, could get a large share of the surplus and production from a different part of the vast territories through this system. From the 14th century, we hear of the Wallace as a Muqtis who are commander of a military and administrative tract is called Ekta. There is understand you? From to the 40th centuries, we hear of the Wallace and his Muqtis who were a commander of military and administrative, and tracks is called to the Ekta, and there is a exact power is varied is accordingly to be a servantance in due course of the mukti was given to complete charge of administration of the ekta, which is included the task of maintaining an army. The mukti was to be help the sultan with his army in a case of need. That is the most important point here. He was expected to maintain the army and meet his own expansion with the revenue collected. From the time of the Balwan, there is a Mukti was expected to send the balance of is a fawazil of the income in the center after the meeting is and the army as expansion. This meant that a center review or department had made as assessment of the expected income of the ekta, the cost of the maintenance of the army and mukti as an expense. This process became even more strict during the time of Alauddin Khalji. As the center control graves, there is a control over the mukti as administration also increased. The Khwaja, probably same is a Sahib a Diwan, was appointed to keep a record of the income of the Ekta. It was on the basis of this record that the Sultan used to be make his revenues or demand. A buried or intelligence officer was also appointed to keep the Sultan informed. During the reign of Muhammad bin Tughlaq, a number of governors were appointed on the revenue sharing
and term where they were to give a fixed sum to the state. During the time of Firoz Shah Tughlaq, the control of the states over Ekta was diluted when to the Ektas become a hereditary. There is a most important point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कहते हैं ये एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है कि प्रोविजनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और जो है एकता जो है सिस्टम, यानी एकता प्रणाली क्या है और इसका क्या प्रोविजनल है जो है यहाँ पर राजनीतिक केंद्रीयकरण में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है कि हमारे प्रशासन में जो है एकता प्रणाली क्या महत्व थी, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं ये कई जगहों पर जो है एग्ज़ाम के व्यू से महत्वपूर्ण ये टॉपिक रखेगा, तो ये जानना जरूरी था। कहते हैं केंद्रीय रणनीति क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में प्रशासन को अनेक प्रकार से चलाया जाता था। तो ये तो बात सच्चाई है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि बाहर हर एक क्षेत्र में प्रशासन चलाने की अपनी रूल रेगुलेशन हुआ करता था और यह उस क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण के स्तर पर भी निर्भर करता था कि उस समय जो राजा हुआ करता था किस प्रकार जो है राजनीतिक नियंत्रण को जो है नियंत्रण किया करता था। सल्तनत की सीमा को बढ़ाने और उसे दृढ़ करने की प्रक्रिया 13वीं से 14वीं शताब्दी तक जारी रहती थी। कहते हैं बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड टाइम था 13 और 14वीं शताब्दी तक। कहते हैं इसमें सल्तनत को सीमा को बढ़ाने का हर एक राजा का जो होता था सपना हुआ करता था कि अपने सल्तनत को वो कहाँ तक फैला सकते हैं और कहाँ तक जो है उनकी जो है पहुँचती है। कहते हैं लड़ाई में जीते गए कुछ नए क्षेत्र सीधे सल्तनत के नियंत्रण में आ जाते थे, यानी आसपास का क्षेत्र होता था तो डायरेक्ट जो है सल्तनत के नियंत्रण में आ जाता था उस समय, जबकि अन्य क्षेत्र पर आंशिक नियंत्रण होता था। इस प्रकार इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए सुल्तान ने अलग अलग कार्य प्रणाली अपनाई। तो जर्नल सी बात है, जैसा क्षेत्र होगा उसी तरह की कार्य प्रणाली अपनाना जो है सुल्तानों के लिए सही मानने में सही रहेगा, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी एक विशेषता होती है और उन्हीं विशेषताओं को देख के जो है यहाँ पर जो सुल्तान है उसी तरह की प्रणाली अपनाया करते थे। सल्तनत से स्वतंत्र रूप से संबंध क्षेत्रों के प्रतीक के रूप में केंद्र द्वारा कुछ अधिकारी नियुक्त भी किए जाते थे। आपको शायद पता होगा, मैंने पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि पहले के समय में जो होता था राजा क्षेत्र को जीत लेता था और उसी राजा के जो है राज करने के लिए कहता था और उसके बदले में वो कहता था कि केंद्र को वो सालाना कुछ जो है उपहार के रूप में देगा और सदैव ही उसका ऋणी रहेगा। तो ये इस तरह के प्रावधान उस समय बनाए गए थे क्योंकि राजा हर क्षेत्र में राज्य नहीं कर सकता था, ठीक है, लेकिन अपने अधीन कर लेना राजा का सबसे बड़ी जो होती थी कामयाबी होती थी। तो सल्तनत में स्वतंत्र रूप से संबंध क्षेत्रों के प्रतीक के रूप में केंद्र द्वारा अधिक नियुक्त किए जाते थे, परंतु रोजमर्रा का प्रशासन स्थानीय हाथों में ही होता था। जो रोजमर्रा का जो कार्य प्रणाली होती थी वो वहाँ के प्रशासनीय हाथों में ही होता था और इन क्षेत्रों में केंद्र की रुचि ज़्यादातर आर्थिक मामलों में अर्थात राजस्व एकत्र करने में थी, यानी हर क्षेत्र का यही एक प्रावधान था कि राजस्व जो है कैसे एकत्र किया जाए, क्योंकि जो राजा उसको जीत लेता था उस क्षेत्र को तो उसको राजस्व में भी कुछ जो होता था अधिकार बन जाती थी। तो ये सारे बातें जो थी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं इन प्रांतों की देख रेख करने की जिम्मेदारी गवर्नरों सूबेदारों पर थी। तो ये तो जर्नल सी बात है कि जो वहाँ के गवर्नर हो गया सूबेदार होगा, कहते हैं उसी के जो है पूरे क्षेत्र को देख रेख करने का जिम्मेदारी दी जाती थी और गवर्नर इस क्षेत्र का जो है संपूर्ण प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे। उनकी जिम्मेदारी में एकत्र राजस्व के सुनिश्चित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना और विद्रोह के नियंत्रण में रखना सम्मिलित था। कहते हैं अगर इन चीज़ों का अगर कंट्रोल कर लिया जाता था तो काफ़ी मानने में जो है सुल्तान के लिए जो है राज्य करना बहुत ही सरल हो जाता था, क्योंकि कहीं भी अगर आप देख लीजिएगा तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि राजस्व निश्चित करना, यानी कर को जो है निश्चित करना हर एक प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होता है। कानून व्यवस्था का व्यवस्थित करना ये भी महत्वपूर्ण होता है और विद्रोह को नियंत्रण में रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं अगर इन तीनों को अगर कंट्रोल में आप कर लेते हो तो कई मानने में जो है वो राज्य आपका हो जाता है और वहाँ पर जो है बहुत ही सुचारू रूप से जो है प्रशासन चलाई जा सकती है। कहते वो अपने क्षेत्र में सुल्तान का प्रतिनिधित्व था, यानी देखा जाए तो सूबेदार जो होता था अपने सुल्तान के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर कार्यरत होता था, क्योंकि अधिकारियों का जो है अक्सर हस्तांतरण होता था, यानी अगर देखा जाए तो अधिकारियों का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र कर दी जाती थी,
या हटा दी जाती थी। तो इसके जगह पर जो है गवर्नर सूबेदार होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, जो सारे ही क्षेत्र की जो है देख रेख कर सके और सभी चीज़ों पर नियंत्रण रख सके। वे उन क्षेत्रों पे परिचित नहीं होते थे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नए अधिकारी अगर आते थे तो वो उस क्षेत्र के परिचित नहीं होते थे। अगर आप उस क्षेत्र के परिचित नहीं होगे तो वहाँ के जो है तकलीफ़ों को कैसे जान पाओगे। तो ये बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट आता है। तभी तो मैं एक बात हमेशा आपको कहता हूँ कि जब भी इलेक्शन होती है तो आप अपने क्षेत्र के व्यक्तियों को जिताइए जो ईमानदार हो, जो आपके ही क्षेत्र में हो, क्योंकि वह उस क्षेत्र की समस्याओं को भली भांति जानता हो। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि लालच के पिटारों में मत फंसना। जहाँ पर लालच आपके लिए दिया जा रहा है समझ जाना कि वो जो है आपके लिए अच्छा कार्य करने वाला नहीं है, क्योंकि लालच में आप फंस रहे हो, वो नहीं फंस रहा है, वो आपको फंसा रहा है लालच के चक्कर में और आप फंस जाते हो। तो कभी भी ज़िंदगी में याद रखना कि कभी भी वोटिंग करना या किसी को भी अपना प्रतिनिधि चुनना तो लालच के अंतर्गत नहीं चुनना। हमेशा जो है एक अच्छे नागरिक की तरह चुनना जो तुम्हारा और पूरे देश का जो है भलाई किया जा सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय भी था कि कोई भी अधिकारी अगर वो बदल जाता था तो उस क्षेत्र से परिचित नहीं होता था और वहाँ पर जो है कार्यप्रणाली करना उसके लिए बहुत ही कठिन कार्य होता था। इसलिए प्राय उन्हें अपने कार्यों को करने के लिए स्थानीय अधिकारी पर निर्भर रहना पड़ता था कि जो स्थानीय वहाँ पर कर्मचारी होते थे, अधिकारी होते थे, उस पे ही निर्भर रहना पड़ता था। स्थानीय अधिकारियों की सहायता के बिना राजस्व वसूल करना संभव ही नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो नया अधिकारी अगर आता है तो उसको कुछ भी उस क्षेत्र के बारे में ज्ञात नहीं होगा, लेकिन पहले से वहाँ पर जो अधिकारी होते हैं उनको हर चीज़ों के बारे में जो है भली भांति जो है पता होता है। इसलिए गवर्नर और स्थानीय शक्तियाँ आपसी सहयोग से कार्य करते थे। कभी कभी यह संगठन सल्तनत के लिए परेशानी पैदा भी करते थे, जो कि साधारण सी बात है। हमने इतिहास देखा और पढ़ा और जाना है, जहाँ पर जो है हमेशा सुल्तान के लिए जो है क्षेत्रीय संगठन परेशानी का सबब बनता था, क्योंकि उनका भी एक ही जो था लक्ष्य था अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना और अपना जो है राज्य स्थापित करना। तो इसी जो है आड़ में वो लोग जो है हमेशा परेशानियां पैदा किया करते थे, क्योंकि गवर्नर स्थानीय शासकों की सहायता से शक्तिशाली बन जाते थे और सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह भी कर देते थे। अब ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई गवर्नर स्थानीय तौर पे जो है पूरी तरह से जान लेता था, समझ लेता था, लोगों को अपने अंडर कर लेता था और वो क्या करता था गवर्नर, फिर सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर देता था। और विद्रोह करने के पश्चात तो आपको पता ही है कि उसका मतलब क्या होगा। उसका एक ही मतलब होगा कि वो अब शासन पे बैठना चाहता है, वो राज करना चाहता है। हर लोगों का जो है, हर व्यक्तियों का यही सपना रहता है जो राजनीतिक में होते हैं, कि उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, चाहे इसके लिए वो जो मर्जी पैतरा अपना ले। आपने ये इलेक्शन में देखते भी हो कि जैसे इलेक्शन आता है सब आपके द्वार पे आ जाते हैं, कभी खाना खाने आते हैं तो कभी आपके हमदर्दी बन के आते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन जीत लेते हैं दोबारा आपको नज़र तक भी नहीं आते हैं। आप रोते रहते हो, बिलखते रहते हो, लेकिन फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो आराम से सरकारी घर में जाके सरकार के जो है बिस्तरों पे जाके सोकर आराम अपना फरमा रहे होते हैं। जाते हैं, उठते हैं, जाकर ऑफिस में अपना हाजिरी लगा के जो है महीना लगता है तो पैसे लेके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की क्या फ़ायदा राजनीति में जो ऐसे कर रहे हैं। कहते हैं जो जनता की भलाई नहीं कर सकता उसको मंत्री बनने का अधिकार भी नहीं है, और अधिकार तो उसको है भी नहीं, लेकिन जनता का भी ये अधिकार नहीं कि ऐसे लोगों को वोट दे और ऐसे लोगों को जिताने की कोशिश करे, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपना मकसद ही पूरा करना जानते हैं। सिर्फ उनका मतलब निकल जाए वो जो मर्जी करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो जनरली आपने देखा भी होगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है और अधिक बात करने की आवश्यकता भी इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि गवर्नर स्थानीय शासकों की सहायता से शक्तिशाली बन जाते थे और सुल्तान के विरुद्ध कर देते थे। और 14वीं सदी के दौरान प्रशासनिक सुविधाओं के लिए इन प्रांतों को जो है 6 में विभाजित कर दिया जाता था और ये 6 का प्रशासन जो है सिकदार द्वारा चलाया जाता था। तब उपरांत अफगान काल के दौरान ये 6 सरकार में परिवर्तन हो गए। प्रांतीय स्तर पर जो है सिकदार के साथ साथ फौजदार एक अन्य अधिकारी भी होता था और इसके कार्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया था और इन दोनों के कार्य मिले जुले ही हुआ करते थे। कहते रिश्तेदार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में
सुल्तान की सहायता किया करते थे और उसे सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराया करते थे। वो छोटी छोटी प्रशासनिक इकाई के कार्य को भी निगरानी किया करता था। फौजदार और सिकदार के कार्य सामान्य हुआ करते थे और कोतवाल फौजदार के अधीन होते थे। प्रांतीय स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी वरीद यानी खुफिया अधिकारी का रिपोर्टर यानी इसको क्या कहते थे, वरीद, तथा साहब ए दीवान यानी प्रांतीय आय और व्यय का वित्तीय लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति हुआ करता था। तो ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली, एकता प्रणाली। देखिए एकता प्रणाली कई मायने में हर एक एग्ज़ाम में आता है जिनके सिलेबस में ये एकता प्रणाली होगी। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में है तो आप समझदार बनिए, इस एकता प्रणाली के विषय में जो है अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और उसको जो है रिटन डाउन करके एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। क्योंकि एकता प्रणाली आखिर है क्या, आप इसके बारे में क्या जानते हो, तो इसी पे जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक जो है विचार विमर्श करेंगे कि भाई एकता प्रणाली में किसके अंतर्गत आता था। तो चलिए देखते हैं एकता प्रणाली के विषय में। कहते हैं एकता प्रणाली आरंभिक इस्लामिक देशों में लागू की गई थी। देखिए एकता प्रणाली सबसे पहले जो था इस्लामिक देशों में लागू की गई थी, जो मुस्लिम धर्म मानते थे उस क्षेत्रों में ये लागू की गई थी। यह राज्य की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था, यानी कोई व्यक्ति अगर सेवा कर रहा है तो उसको पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था, तो कह सकते हैं एक तरह का तनख्वाह के रूप में दी जाती थी। खलीफा के प्रशासन में यह नागरिक और सैन्य अधिकारी को दिया जाता था। जब खलीफा का प्रशासन था तो उस समय नागरिक को और जो है सैन्य अधिकारी को जो है एकता प्रणाली दी जाती थी। सल्तनत की स्थापना के बाद सुल्तानों द्वारा एकता प्रणाली आरंभ की गई थी। देखिए जब सल्तनत स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद जो है एकता प्रणाली जो है सल्तनत के अधिकारी सुल्तानों द्वारा ये जो है प्रणाली आरंभ की गई थी। आरंभ में जो था सैन्य कमांडर द्वारा अभिजात वर्गों को प्रशासन चलाने तथा राज्य की उगाही करने के लिए नए क्षेत्र सौंप दिए जाते थे। अब देखिए एकता प्रणाली के अंतर्गत क्या था कि देखिए प्रशासन चलाने तथा राज्य की उगाही करने के लिए क्षेत्र सौंप दिए जाते थे। किसको, जो है सैन्य कमांडर और अभिजात वर्गों को, कि वो जो है वहाँ से जो है राजस्व इकट्ठा करेंगे। इसी को ये हम कहते हैं एकता प्रणाली। इस प्रकार सौंपे गए इन क्षेत्रों को एकता कहते थे और जिन्हें ये एकता सौंप दिए जाते थे उसको इक़्तिदार अथवा मुक्ति कहलाते थे। तो समझ में आया एकता प्रणाली क्या था। एकता प्रणाली जो था सैन्य कमांडर और अभिजात वर्गों को जो है राजस्व के जो उगाही जो है निकालने की जो है सौंप दिए गए थे, क्षेत्रों को सौंप दिए गए थे। इसी को एकता प्रणाली के कहा गया और इस प्रकार सौंपे गए क्षेत्र की एकता कहते थे और जिन्हें एकता सौंपे जाते थे उनको इक़्तिदार अथवा मुक्ति भी कहते थे। कहते हैं संक्षेप में अगर हम इस बात को चर्चा करें तो यह अधिकारियों के भुगतान करने की एक प्रणाली थी, यानी अधिकारियों को जो है एक प्रणाली थी जिससे कुछ भी जो है भुगतान करने की एक प्रणाली बनाई गई थी जिसमें वो सेना की देख रेख करते थे। धीरे धीरे संपूर्ण प्रणाली को संगठित करने के लिए नियम और विनियम निर्धारित किए गए। वर्ष से ये सल्तनत का जो है प्रशासन चलाने का मुख्य साधन बन गया था और इसके अतिरिक्त इस प्रणाली के जो है माध्यम से विशाल क्षेत्रों को विभिन्न भागों से सुल्तानों को जो है अधिक उत्पादन का बड़ा भाग मिलने लगा। यानी देखा जाए तो सुल्तानों को इससे बहुत जो है फ़ायदा हुआ। कहते हैं 14वीं सदी से हम जो है वलिस और मुक्तिसर के बारे में सुनते आ रहे हैं। वलिस और मुक्तिस ये सेना और प्रशासनिक क्षेत्र कमांडर होते थे। देखिए नाम बेशक कुछ भी हो, चाहे वलिश हो या मुक्तिस हो, इतना आपको याद रखना है कि प्रशासनिक क्षेत्र के कमांडर हुआ करते थे। जो है इन्हें एकता भी कहते थे, यानी इसको एकता के नाम से भी जाना जाता था। यानी वलिस मुक्तिस को जो है एकता के नाम से भी उस समय जाना जाता था और इनकी यथार्थ शक्तियों में परिस्थिति के अनुसार यानी परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता था। जैसा समय चलता था उस तरह से जो है परिवर्तन की जाती थी। समय के अनुसार मुक्तियों का जो है एकता का प्रशासन का दूसरा दायित्व सौंप दिया जाता था, यानी प्रशासन का जो है पूरा दायित्व सौंप दिया जाता था। किसको, एकता को या वलिस को या मुक्तिस को, किसी को भी बोल दो, सबका मतलब एक ही है। समय के अनुसार जो है सौंप दिया जाता था जिसमें सेना के देख रेख का कार्य सम्मिलित होता था। आप समझ सकते हो ना कि वलिस या मुक्तिस या एकता का क्या कार्य होता था। क्या होता था, सेना की देख रेख का कार्य सम्मिलित होता था और आवश्यकता पड़ने पर मुक्ति को अपनी सेना सहित सुल्तान की सहायता भी
करनी पड़ती थी। यानी समय आने पर सुल्तान के भी मुक्ति जो होते थे सहायता किया करते थे एकता प्रणाली। उससे आशा की जाती थी कि वो वसूल किए गए राजस्व से सेना की देख रेख करे और अपना खर्च स्वयं ही करे। यानी देखा जाए तो इसमें जो था इसके अंतर्गत जो है एकता प्रणाली के अंतर्गत कि राजस्व वो इकट्ठा करें और सेना के जितने भी खर्च पड़ते हैं उसी के अंतर्गत जो है मेंटेनेंस करें और अपना भी स्वयं का भी खर्च निकाले। तो ये सारे एकता प्रणाली के अंतर्गत था। देखा जाए तो बलबन के शासनकाल से ही मुक्ति से यह आशा की जाती थी कि वह अपने और सेना के खर्च को पूरा करने के बाद शेष आय यानी फवाजिल केंद्र को भेजें। यानी अपने सेना को पूरा मेंटेनेंस कर देने के बाद जो भी शेष आय बचता है वो जो है सुल्तान को भेज दे या केंद्र को हाथों में सौंप दे। ये बलबन के समय भी ऐसा ही होता था। इसका अर्थ है कि केंद्रीय राजस्व विभाग एकता की संभावित आय, सेना के रखरखाव पर आने वाली लागत तथा मुक्ति के अपने खर्च का मूल्यांकन किया करता था। कहते अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल के दौरान इन प्रक्रिया के संबंध में और सख्ती बढ़ा दी गई थी। यानी अलाउद्दीन खलजी के समय ठीक है काफ़ी सख्ती इसमें जो है बढ़ा दिया गया था। जैसे जैसे केंद्रीय नियंत्रण बढ़ता गया मुक्ति के प्रशासन पर भी नियंत्रण बढ़ता ही चला गया। तो जर्नल सी बात है, जैसा समय बढ़ेगा वैसा जो है कंडीशन अपनाया जाएगा। तो यही यहाँ पर देखने को मिला कि पहले तो मुक्ति यानी जो ये एकता प्रणाली होती थी उसमें कोई तरह की सख्ती नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुक्ति को जो है प्रशासन पर नियंत्रण बढ़ता ही चला गया और ख्वाजा संबता या साहब ए दीवान के बराबर हो गया था। और कोई जो एकताओं का आय का लेखा जोखा रखने के लिए नियुक्त भी किया जाता था और वरीद और गुप्तचर अधिकारी को भी नियुक्ति की जाती थी कि वहाँ पर देखा जाए कि एकता प्रणाली के अंतर्गत जो है कुछ गलत न हो रहा हो। तो जर्नल सी बात आप भी समझ सकते हो यहाँ पर कि जो वहाँ पर सुल्तान ने जो ये कहा कि आप राजस्व इकट्ठा कर लीजिए और आपके सेना में जितना भी खर्च लगता है आप लगाइए और उसके बाद जो राशि बचेगा हमें दीजिए। तो आप समझ सकते हो कि व्यक्ति जो राजस्व इकट्ठा करेगा यानी इक़्तिदार जो है पैसा इकट्ठा करेगा, राजस्व इकट्ठा करेगा, तो आपको क्या लगता है कि वो खर्च करने के बाद जो है सेना को खर्च देने के बाद वो सरकार को पैसा वापस करेगा? और करेगा भी तो बहुत कम अमाउंट में करेगा, बाकी सब जो है जेब में ही रखेगा। तो इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार फैलेगा। तो इसीलिए जो है उस समय जो है गुप्तचर विभाग का भी जो है नियुक्ति की गई, क्योंकि गुप्तचर जो होते थे सारी बातों की इन्फॉर्मेशन रखते थे कि यहाँ पर क्या हालात पैदा हो रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान राजस्व में भागीदारी शर्तों पर अनेक सूबेदारों की नियुक्ति भी की जाती थी जिन्हें राज्य को निश्चित राशि देनी होती थी। और फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान इक़्ताओं पर जो है राज्य का नियंत्रण समाप्त हो गया था। लेकिन देखा जाए दोस्तों यहाँ पर फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान इक़्ताओं पर जो है राज्य का नियंत्रण समाप्त हो गया था। होना स्वाभाविक बात थी, क्योंकि जिस तरह से प्रणाली थी इसमें तो होना स्वाभाविक बात थी। कहते ये इक़्ता जो है वंशानुगत हो गए थे, यानी एक जो है अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है उस समय तो उसके बेटा जो है इसका मुख्य अधिकारी बन जाएगा, यानी वंशागत कर दिया गया था कि एक वंश के बाद दूसरे वंश के व्यक्ति जो है इसको संभालेंगे। तो ये इक़्ता प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण था और एग्जाम व्यू से भी काफ़ी ज़रूरी था। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे जो है मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि आप लोग जो है इसको अच्छा से देख रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, तभी जो है आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा और चैनल का जो है होम पेज भी मिलेगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके
8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।